लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेक्शन 149 का पूरा एनालिसिस किया था, तो अभी आज हम उसके रूल्स देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रीता है जो अपने को एक्सप्लेन करेगी। और ठीक है, रूल्स पे आ जाओ। Rules. हम्म, Rule 1, हम्म, Company's Appointment and Qualification of Directors Rules 2014. हम्म। They shall come into force on the first day of April 2014. तो ये ऑलरेडी इफेक्ट में आ गया, कुछ देखने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट करो और ऊपर डाल दो इसको। Yes. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन 149 जो है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो हम उसको पढ़ेंगे, और उसके हिसाब से जो हमने ऊपर नोट्स बनाए थे उसमें उसको सप्लीमेंट Hmm. करते जाएंगे। चलो, सेटिंग Yes. सेटिंग छोड़ दो, सेटिंग नीचे। Second, definitions. हम्म, In these rules, unless the context otherwise हम्म, requires, Act means the Companies Act ठीक है, 2013. Annexure means the annexure to these rules. ठीक है, Hmm? बढ़ते जाओ फटाफट। जो Digital signature means काम the की deed. डेफिनेशन है वही लेंगे, बाकी हाँ, सब पढ़ो। हाँ, हाँ, पढ़ते जाओ, पढ़ना सबको है, okay. पढ़ना पूरा। फिर elect. डिजिटल Hmm. सिग्नेचर। Digital signature means the digital signature. Yes. ठीक है। Director identification number हम्म, means identification number allotted by central government to any individual intending to be appointed as director or to any हम्म, existing director of a company for the purpose of his identification as a director of a company. हम्म, Provided that the DIN obtained by the individuals prior to notification of these rules shall be the DIN for the purpose of the Companies Act 2013. हम्म। Provided further that the DIN includes the designated partnership identification number issued under Section 7 of the Limited Liability Partnership Act 2008 and rules made thereunder. तो क्या बोल रहा है समरी में? Then electronic नहीं record. नहीं, आराम से, आराम से भाई, Uh, फुर्सत से कर दो, जल्दी नहीं। okay. क्या है डिन? DIN मतलब कोई भी नंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉट किया गया है हम्म, to any person who may be appointed as a director or to existing director of the company, हम्म। which designates him as a director of that company. तो जैसे कंपनी का सीन और होता है वैसे डायरेक्टर का डिन है। हाँ, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर नंबर से DIN होता हम है। उसको पहचान सकते हैं। फिर उसने हम्म, सेकंड पैराग्राफ में बोला जिसने कंपनी एक्ट से पहले लिया हुआ था राइट। 2013 से, वो भी डिन वैलिड है, और जो हम्म, एलएलपी में डी पिन लगता है वो भी डिन माना जाएगा। यस, हम्म, यस। चलो, कॉपी करो, ऊपर ले जाओ। हम्म, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं पता हो। यस। फिर electronic record means the electronic record as defined under clause T of subsection 1 हम्म, of section 2 of the Information Technology Act 2000. ठीक है। Then electronic registry हम्म, means an electronic repository or storage system of the central government in हम्म। which information or documents are received, stored, protected and preserved in electronic form. अभी हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्म फाइल करते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते fees, हैं। हम्म, जो, right, और वो रिकॉर्ड yes. गवर्नमेंट के सर्वर में जाके सेव होते हैं, तो जहाँ सेव होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, और जो भी हम फाइल कर रहे हैं या मेंटेन Hmm. कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। Hmm. Record. ठीक है। फीस। ठीक है। Then fees means the fee as prescribed in the company's registration office and fees rules 2014. And form or e-form means a form set forth in annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates. A regional director means the person appointed by the central government in the Ministry of Corporate Affairs as a regional director. Section means section of the act. For the purpose of clause D of subsection 1 of section 164 and clause F of subsection 1 of section 167 of the act,
or otherwise means any offense in respect of which he has been convicted by a court under the Act or under the Companies Act 1956. Then words and expressions used in these rules are not defined, but defined under the Act or under the Securities Contract Regulation Act 1956, or the Securities and Exchange Board of India Act 1992, or Depositories Act 1996, or the Information Technology Act 2000, or the Company's Specification of Definition Details Rules 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in those Act or such rules. ठीक है, अभी हमने 2 ही सेक्शन पढ़े, तो रूल्स पढ़े, रूल 1 और 2। रूल 1 में कुछ भी नहीं था, रूल 2 में भी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है हाँ एक्सेप्ट फॉर डिन नंबर, जो अभी अपने को इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी yes की रूल्स के सेक्शन के साथ अपने को लिंक करे, इसलिए अपन ने इसको एलेबोरेट नहीं किया। ठीक है, अब right थोड़ा ऊपर डालो। हाँ, okay ठीक है। चलो सेटिंग बाद में करें। अभी रूल 3 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। हाँ, अभी हमने The ऊपर एक following रेड class of करके companies रखा था कि वुमेन डायरेक्टर्स yes sir की सर्टेन प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज जो है उनको mandatory वुमेन डायरेक्टर है, तो कौन सी कंपनी है जिनको yes वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। yes rule 3 following class of companies shall appoint at least one woman director. Every listed company, every other public company having paid up share capital of 100 crore or more or turnover of 300 crore or more, provided that a company which has been incorporated under the Act and is covered under provisions of second proviso to subsection 1 of section 149 shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation. Provided further that any intermittent vacancy of a woman director shall be filled up by the board at the earliest, but not later than the immediate next board meeting, or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. Explanation. For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the paid up share capital or turnover, as the case may be, on the last date of the latest audited financial statement shall be taken into account. ठीक है, और समरी पहले समझ लो, फिर उसके बाद ऊपर लिखना। 2 टाइप की कंपनियों को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। एक लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी कंपनीज एक्ट में हमेशा इक्विटी लिस्टेड कंपनी है। अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है, पहली चीज। फिर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और आपकी, अगर हम लोग सपोज अभी खड़े हैं 22-23 पे, अभी हम सितंबर में नवंबर में खड़े हैं, तो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी हमारी 31 मार्च 2022 की। अगर एज ऑन 31 मार्च 2022 हमारी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या हमारी टर्नओवर 300 करोड़ या 300 करोड़ से ज्यादा है, तो हमको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की कैपिटल के साथ ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। फिर अगर कोई अपॉइंटेड वुमेन डायरेक्टर है, अगर वो छोड़ जाती है, तो उसको जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रही है या 3 मंथ, जो भी दोनों में से लेट है, उतने के अंदर अपने को वो वैकेंसी फिल करनी है। तो मैक्सिमम नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक या 3 महीने तक की वैकेंसी खाली रह सकती है। राइट, ठीक है, अब इसको ऊपर लिख दो। यस वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी। नीचे लिख दो, एवरी लिस्टेड कंपनी, पहले लिखो राइट मूव लिस्टेड कंपनी। 2 कंपनी है ना, राइट मूव लिस्टेड लिमिटेड, यस, लिस्टेड एंड राइट मूव लिमिटेड कर दो, कंपनी की जगह लिस्टेड लिमिटेड कर दो। लिस्टेड और दूसरा राइट मूव एंड लिमिटेड, राइट मूव लिमिटेड, जिसके आगे ब्रैकेट में पेड अप कैपिटल, अनलिस्टेड, नहीं अनलिस्टेड नहीं, पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू greater than or equal to 100 करोड़ 100 crore और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़। 300 crore। ठीक है,
Yes. फिर एज पर बैलेंस शीट ऑफ March 31, 2022, 2022. ब्रैकेट में लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, हाँ, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. राइट. ओके. और उसके यस. बाद ऑन इनको नीचे लिखो इसके, ऑन इनकॉर्पोरेशन नीचे, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. हाँ, ऑन इनकॉर्पोरेशन हाँ, ऑन इनकॉर्पोरेशन विद इन 6 months टू अपॉइंट टू अपॉइंट और एनी वैकेंसी वैकेंसी विद इन 3 months within 3 months और नेक्स्ट बोर्ड or मीटिंग. meeting whichever later. हाँ, तो वुमेन डायरेक्टर का रूल क्लियर हो गया. तो सर ये वेकेंसी विद इन 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग whichever is later हाँ, earlier होना चाहिए ना ये. नहीं ना, अगर सपोज अगली बोर्ड मीटिंग कल आ रही है और हाँ. तो एक दिन में कैसे ढूंढेगी? ओके. तो 3 महीने का टाइम तो चाहिए तेरे को. ओके. अगर अगली बोर्ड यस. मीटिंग 4 महीने यस. बाद है 120 days के गैप के बेस पे, तो आपको 90 days के राइट. अंदर भरना. ओके. ठीक ठीक है, है. इसका कलर हटा दे और बराबर ब्लैक कर दे. अभी ये कवर हो गया. हम्म. ठीक है. ओके, आगे चलो रूल पे. ये रूल कट करो, ऊपर ले लो. क्लियर है ना रूल वुमेन डायरेक्टर का? यस, क्लियर है. क्लियर है. ठीक है. Now rule 4, number of independent directors. The following class or classes of companies shall have at least two directors as independent directors. Public companies having paid up share capital of 10 crore or more, or the public companies having turnover of 100 crore or more, or the public companies which have an aggregate outstanding loans, debentures, and deposits exceeding 50 crore rupees. Provided that in case a company covered under this rule is required to appoint a higher number of independent directors due to composition of its audit committee, such higher number of independent directors shall be applicable to it. Provided इतना that. इतना ही कर लो पहले. ठीक है. पहले समझ लो क्या है. अभी वुमेन डायरेक्टर के लिए 100 करोड़ का क्राइटेरिया था, इसके लिए 10 करोड़ का है. Yes. उसके लिए 300 करोड़ का Yes. क्राइटेरिया था, इसके लिए 100 करोड़ का है. फिर अगर आपके लोन, डिबेंचर या डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, बोरोइंग. Yes. अब ये किससे है वो नहीं लिखा हुआ था. किसी का भी लोन अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा है, ये कंबाइन करके, तो भी आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जरूरी है. अब अगर किसी कंपोजिशन ऐसी है जहाँ पे उसको 3 डायरेक्टर चाहिए ऑडिट कमेटी के लिए, तो उसको वैसा रखना पड़ेगा. Right. आगे. Provided further that any intermittent vacancy of an independent director shall be filled up by the board at the earliest, but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. सेम वुमेन डायरेक्टर जैसा. Yes, same है. Provided also that where a company ceases to fulfill any of the 3 conditions laid down in Subrule 1 for 3 consecutive years, it shall not be required to comply with these provisions until such time as it meets any of such conditions. अभी समझो 22-23 में पिछले साल के उसके बेस पे आपको एप्लीकेबल हो गया. हाँ. लेकिन 23-24 में नहीं हुआ, 24-25 में नहीं हुआ, 25-26 में नहीं हुआ, तभी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आउट हो सकते हो. तब तक आपको करना पड़ेगा. एक बार आप आ गए तो 3 साल तक करना पड़ेगा. ठीक है. नीचे. Explanation. For the purpose of this rule, it is hereby clarified that
the paid up share capital or turnover or outstanding loan, debentures, and deposits, as the case may be, as existing on the last date of latest audited financial statements shall be taken into account. सेम वुमेन डायरेक्टर Same वाला as, yes. Provided that a company belonging to any class of companies for which a higher number of independent directors has been specified in the law for the time being in force shall comply with the requirements specified in such law. अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी को 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो 2 की जगह उसको 4 अपॉइंट करना। ओके, जैसे इंश्योरेंस एक्ट में हाँ या कोई ऐसे भी। किसी में, ठीक है। अभी इसको लिख ले पहले, हम्म अभी पहले बेस समझा, एकदम समरी में समझा दे लिखने से पहले कि पेड अप कैपिटल 10 कि करोड़ से बेसिकली, ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ हाँ से ज्यादा, लोन डिबेंचर 50 करोड़ से ज्यादा, एज हाँ पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट yes, डायरेक्टर अपॉइंट करने। हाँ। हम्म, और कोई भी अगर किसी रूल में दिया हुआ है कि हम्म, हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ऑडिट कमिटी है तो उस हम्म, हिसाब से हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है। ठीक है। वैकेंसी 3 महीने में या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, हाँ, और एक बार और आपको एप्लीकेबल हो गया तो 3 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा आगे के। रहेगा, यस। फिर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से लिमिट्स देखनी है। ठीक है, लिख ले एक बार ऊपर इतना, और फिर इसको कट करके ऊपर ले जा। डिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रिस्क्राइब पब्लिक, ये रहा। देखो लिस्टेड कंपनी में तुमने सिंपल बोल दिया कि 1/3 डायरेक्टर आपको चाहिए और राउंडेड ऑफ होना चाहिए, तो दोनों में फर्क यस, समझो। लिस्टेड में 1/3 था और यहाँ पे मिनिमम 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/3 नहीं लिखा हुआ। यस। एंड फॉर अदर लिस्टेड एलओडीआर रेगुलेशंस ना, जो इक्विटी लिस्टेड नहीं है, हाँ उनको उसके हिसाब से जाना। ठीक है। इक्विटी लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड होगी ना, उनको नीचे वाले रूल के हिसाब से जाना है जो आप लिख रही हो, नहीं, पर सर डेट लिस्टेड हो तो तो उसको अनलिस्टेड मानेंगे ना। अनलिस्टेड, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ऊपर लिखो राइट मूव लिमिटेड। हम्म ठीक है, ब्रैकेट में पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन, अब वो मोर था कि इक्वल भी था। पेड अप कैपिटल हैविंग ऑफ 10 करोड़ और नहीं तो ग्रेटर देन, वो, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़। CR, ठीक है। हम्म टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देन करोड़। इक्वल टू 100 करोड़। लोन डिपॉजिट डिबेंचर लोन डिपॉजिट डिबेंचर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल टू टू 50 करोड़, 50 करोड़। राइट, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। अगर हम्म 1.5 साल पुरानी ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो वही चलेगी, अगर आपका इस साल का ऑडिट नहीं हुआ है तो। हाँ, इस ऑडिटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है। वैकेंसी टू बी फिल्ड, वेकेंसी सेम एज वुमेन डायरेक्टर ना, या वुमेन डायरेक्टर का यहाँ पे वेकेंसी विद इन 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। ठीक चलो है। लेटर। उसके बाद हायर नंबर इफ प्रिस्क्राइब्ड अंडर एक्ट और रूल्स अदर एक्ट, हाई नंबर इफ प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी एक्ट, अंडर एनी अदर रेगुलेशंस, ठीक है। राइट। और कुछ रह यस, गया? ये लिमिट्स कवर हो गई, हायर नंबर, इंटर वेकेंसी कवर हो गई, और ये 3 years का कंडीशन। वंस एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर, यस, कैन ऑप्ट आउट ओनली, वंस इसको ऐसे लिखो, वंस हम्म एप्लीकेबल, नहीं तो ऐसा हम्म लिखो ना कि कैन ऑप्ट आउट ओनली, कैन ऑप्ट आउट हम्म ओनली इफ हम्म conditions not fulfilled in 3 consecutive years। यस, तो अगर 1 साल में भी बीच में से होगी तो फिर भी लगा रहेगा। 3 कंटिन्यूस ईयर चाहिए जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं हो रही।
नहीं हो, क्लियर। एंड पेड अप शेयर कैपिटल, यस, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। एंड हायर नंबर स्पेसिफाइड अंडर एनी लॉ, ये हो भी गया। हो गया। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, कौन सी लिमिटेड कंपनियां जो हैं जिनको नहीं करना, हम्म। इवन दो ये क्राइटेरिया मैच कर रही हैं, 10 करोड़, हाँ 50 करोड़, 100 करोड़, लेकिन स्टिल नहीं चाहिए, वो कौन सी कंपनियां हैं? 3 टाइप की कंपनियां, बोलो। हाँ, जॉइंट वेंचर, हम्म। wholly owned subsidiary, and dormant company as defined under section 455 तो of अगर the कोई Act. कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, हाँ। कोई होली ओन सब्सिडरी है, और कोई हम्म। डोरमेंट कंपनी है, तो उसको जरूरत नहीं हम्म। है, इवन दो दे आर डूइंग दिस, तो उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ओके। रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है। तो अगर राइट मूव सो ओके। सब्सिडरी लिमिटेड, हम्म। राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड, subsidiary limited, एंड नीचे लिखो राइट मूव ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड, right move joint venture limited, और राइट मूव डोरमेंट लिमिटेड। dormant limited। ठीक है, तीनों को एक लाइन में ले लो और आर एग्जाम्प्ट कर दो। ठीक है, exempt आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। from appointing independent director। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत क्लियर होगी कि हाँ। लिस्टेड कंपनी 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ यस। टू 1, और अनलिस्टेड हम्म। कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर हम्म। 100 करोड़ से ज्यादा, और हम्म। अपना लोन्स 50 करोड़ से ज्यादा, तो उनको अपॉइंट यस। करना है। और हाँ। एक बार अपॉइंट हो गया तो 3 साल तक कंटिन्यूसली, अगर कंडीशन नहीं मैट हुई तभी आप ऑप्ट आउट कर हाँ। सकते हैं। वैकेंसी यस। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में या 3 मंथ्स में जो हम्म। लेटर है उसमें फिल करनी है। हम्म। हम्म? और एक्सेप्शन में होली ओन ज्वाइंट वेंचर और डोरमेंट कंपनियां ही एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्ट है, ठीक है, ये क्लियर है सर। हम्म। ठीक है। ओके। हो गया, जो रूल हो ठीक। गया उसको कट करके ऊपर ले जाओ। हम्म। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अनलिस्टेड में कंपनी में करना है तो सेक्शन हम्म। 149, उसके रूल्स और शेड्यूल हाँ। 4, ये 3 चीजें मिला के अनलिस्टेड, और जब लिस्टेड के लिए करना है तो इसको सप्लीमेंट करने का लिस्टिंग हम्म। रेगुलेशन। तो इसके बाद हम ओके। लोग शेड्यूल 4 करेंगे, और फिर उसको लिस्टिंग रेगुलेशन के प्रोविजन से सप्लीमेंट करेंगे अदर कलर में। ठीक है। तो ये एक जो टेबल बनेगी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम्म। की कंप्रिहेंसिव टेबल रहेगी, जिसमें ये ओके। ब्लैक ब्लैक जो है वो अनलिस्टेड के लिए, और जो भी चीज अलग कलर हाँ। में आएगी वो लिस्टेड कंपनी की एडिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये रूल 5 हटा देती हूँ। 5 क्या है, पढ़ना है ना, हटा के दे। Qualifications, okay. Qualifications of independent director. हम्म। An independent director shall possess appropriate skill, experience, knowledge in one or more fields of finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operations, or other disciplines related to the company's business. None of the relatives of an independent director, for the purpose of subclause 2 and 3 of clause D of subsection 6 of section 149, is indebted to the company, its holding subsidiary or associate company, or their promoters or directors, or has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company, its holding subsidiary or associate company, or the promoters or directors of such holding company, for an amount of 50 lakh rupees at any time during the 2 immediately preceding financial years or during the current financial ठीक है, year. अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में लास्ट में लिखा था सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो पहले तो उसने Right. एरिया बता दिया कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आप अपॉइंट करोगे तो इनमें से Hmm. एक में फॉल करना चाहिए, अगर इसमें फॉल नहीं कर Hmm. रहा तो जो कंपनी का बिजनेस है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इसमें भी Right. फॉल नहीं कर रहा और कंपनी के एक्सपीरियंस वाला भी नहीं है तो वो पर्सन हाँ. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। दूसरा, Yes. जब हमने रिलेटिव के लिए देखा था तो उसमें लिखा हुआ था कि लोन इंडेटनेस के लिए लिमिट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, तो गवर्नमेंट ने 50 लाख हाँ. रुपीज प्रिस्क्राइब किया। प्रिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऊपर लिख दो। हम्म.
एक मिनट, such as may be prescribed. रेड किया होगा, देखो हाँ जो, ये रहा, हाँ qualification as may be. इसके आगे लिख दो सेल मार्केटिंग क्या क्या है वहाँ डैश करके। Experience and appropriate skills, वो ठीक experience, है, knowledge. वो ठीक है। इन एरिया लिख दो कौन से एरिया में। Finance, law, management, कॉपी कर sales, लो और पेस्ट कर marketing. दो। And research corporate or other disciples related to company's business. ठीक है, अब ये सब मालूम था क्या तेरे को पहले? नहीं ये नहीं था rule जैसे में। एक्ट भी और रूल भी दोनों देखने का, और पढ़ने से हाँ अच्छा कुछ तो नया नया मालूम रहता है। ठीक है, ऊपर यस। इसको ब्लैक कर दे अगर ये क्लियर हो गया तो, क्योंकि ये रूल करने के बाद इस डब्बे को हम पूरा पढ़ेंगे कि हमको अब सब समझ आ रहा है कि नहीं, और फिर उसके ओके बाद कोड ऑफ कंडक्ट पे जाएंगे। ठीक है। फिर is indebted to the हाँ, company, ये ऊपर कवर हो गया देख, ना? ऊपर रेड किया हुआ ना आपने, हाँ is indebted to the company इन दोनों के आगे should, ग्रेटर देन 50 लाख कर दो, 8 और 9 में ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज। हाँ 8 and 9 greater than 50 lakh rupees. 50 लाख से ऊपर अगर लोन लिया रिलेटिव ने, या 50 लाख से ऊपर हम्म गारंटी दे रखी है, हम्म तो नहीं चला। 50 lakh rupees. ओके कवर। अभी यस देखो इसमें कवर्ड। बचा है ऊपर से नीचे में जो रेड है, नहीं तो फिर और कौन सा कुछ रूल? भी रेड में बचा पर तो एक रूल कौन सा बचा हुआ है, वो भी तो प्रिस्क्राइब्ड में ही होगा, तो कौन सा हमने रेड नहीं किया, नीचे देखो। नहीं। has given a guarantee or ये provide तो हो any गया, हो गया, security. आगे पढ़ो। ये तो हो गया। हाँ, Rule 6 compliance इसको required कट by a करके person पहले ऊपर ले लो, eligible. रूल 5। Okay. Hmm. Tax. ठीक है। अब रूल 6 में compliance is required by person eligible and willing to be appointed as independent director. अभी कोई बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो सर ये रूल और सेक्शन 150 कॉरेस्पॉन्डिंग है ना? 149 के साथ आगे, हाँ नहीं पर वन, ओके ओके। दोनों 149 50 साथ में Every every individual who हम्म, has been appointed as an independent director in a company हम्म, on the date of commencement of the company's appointment and qualification of directors, Fifth Amendment Rules 2019, हम्म, shall within a period of 3 months from such commencement 13 मंथ, or 13 months from such commencement, or who intends to get appointed as an independent director in a company after such commencement ये shall एक काम before करो, such। इसको हटा दो क्योंकि ये सेक्शन 150 का है। हाँ ये सेक्शन 150 का है। डिलीट। ठीक है। अब ये टेबल देखो हम्म जो आपने बनाई है। हाँ हम्म, अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले लो, हम्म और अब मुझे समझाओ कि हमने सेक्शन 149 विद रूल्स पढ़ लिया है तो क्या कह रहा है एकदम स्पीड में। कह रहा है कि पहले तो लिमिट प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई भी प्राइवेट पब्लिक या ओपीसी के लिए। फिर बता रहा है कि वुमेन नहीं नहीं, डायरेक्टर कितनी किन कितनी ये भी कंपनीज। बताओ, सब बताओ। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, हम्म, प्राइवेट में पूरा मिनिमम 2, पढ़ो बेटा, ओपीसी में मिनिमम। एक लाइन से पूरा पढ़ो, जो लिखा है उसको पढ़ो। ठीक है ओके। फिर पब्लिक कंपनी में बता रहा है मिनिमम 3 मैक्सिमम 15, 15 से ज्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन। प्राइवेट में भी मिनिमम 2 अगर और मैक्सिमम 15, 15 से ज्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन। 1% में भी मिनिमम 1, मैक्सिमम 15, 15 से ज्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर कह रहा है कि वुमेन डायरेक्टर इज इसके मैंडेटरी फॉर। हेडिंग जो है उसको कलर कर दो। ठीक है। वुमेन डायरेक्टर। हम्म, फिर वुमेन डायरेक्टर किन कंपनीज में हैज टू बी मैंडेटरी अपॉइंटेड वो दिया हुआ है। जब एक लिस्टेड कंपनी हो और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड मींस ओनली इक्विटी शेयर लिस्टेड, where paid up capital is greater or equal to 100 crore or turnover is greater to equal to 300 crore.
This paid up capital turnover has to be determined as per latest audited balance sheet. Incorporation company का हुआ है तो within 6 months you have to appoint women director if you meet the above conditions. और कोई भी अगर बीच में women director vacancy हुई, resign हो गई, तो next board meeting और 3 months from the date of vacancy whichever is later में appoint करना पड़ेगा. ठीक है, फिर रेजिडेंट डायरेक्टर की बात कर रहा है इसको कि एटलीस्ट कलर वन कर दो, डायरेक्टर. हेडिंग को नीचे लेगा एटलीस्ट का पूरा, एटलीस्ट से लेके ओके. ड्यूरिंग द, फिर कह रहा है कि एक डायरेक्टर एटलीस्ट मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 to 2 days ड्यूरिंग द ईयर. उसमें एक प्रोविजन दिया है कि अगर बीच के साल में इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर एग्जांपल नवंबर 2021, तो प्रोपोर्शनेटली ही मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया. फिर राइट मूव अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें से एटलीस्ट अब 1/3 इसको ऑफ बोल्ड द कर दो, टोटल. इसको कलर कर दो. 1/3 of the total number of directors should be independent. And that 1/3 is rounded off to the nearest one. तो 1/3 of fourth 1 point something तो 2 directors हो गए. इसमें 1/3 नहीं लिखा है ना. Third ऑफ टोटल, independent. हाँ, 1/3 of total. ठीक है. देख ले, इसको देख के तेरे को याद आ रहा है तो इसको मतलब अभी समझ गई 149. हाँ, तो नियरेस्ट वन. फिर आया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए प्रिस्क्राइब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. कलर कर दो. तो हाँ, ऊपर लिस्टेड के लिए था इक्विटी शेयर लिस्टेड, ये है पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड के लिए. सो जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर इक्वल टू 10 crore, टर्नओवर ग्रेटर इक्वल टू 100 crore, at the loan debenture deposit greater to equal to 50 crore as per latest audited balance sheet. फिर अगर वेकेंसी है तो जस्ट एज वुमेन डायरेक्टर उनको भी अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर लेटर. अगर कोई एक्ट में हायर नंबर प्रिस्क्राइब की है तो हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड. अगर 3 years में आपकी लिमिट्स एज स्टेटेड अबाउ क्रॉस नहीं हुई है तो you can opt out of the conditions. फिर certain exceptions है कि subsidiary, joint venture or dormant company, even if they cross the turnover limits or loan deposit debenture or paid up capital limits, they do not have to appoint independent director. फिर एक एग्जाम्पल दिया जिसमें राइट मूव लिमिटेड एक कंपनी है एंड दे वांट टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. उसकी कंडीशंस क्या क्या है. कंडीशन को कलर कर दो. हाँ, बोल. सारी she must not be MD, WTD or nominee. Integrity experience होना चाहिए. Not related to past or present promoter of company holding subsidiary or associate. Not be related to promoter of these companies. फिर कुछ भी monetary transaction other than director remuneration exceeding 10% of her income नहीं होनी चाहिए in current financial year or preceding 2 financial years. फिर आई रिलेटिव की कंडीशन. अगर सिर्फ रिलेटिव को ही अपॉइंट करना हो तो उसको ही अपॉइंट करना है, लेकिन रिलेटिव का ये सब ट्रांजैक्शन है तो हाँ, उसको ही अपॉइंट करना है पर सिर्फ रिलेटिव. ओके. तो अगर रिलेटिव हो तो रिलेटिव मस्ट नॉट होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ग्रेटर देन 50 lakh और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल. फिर कुछ इंडेटेडनेस नहीं होनी चाहिए विथ दिस प्लस द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स in the current financial year to preceding financial years greater than 50 lakh rupees. फिर कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी फॉर लोन, अगर किसी तीसरे आदमी ने लोन लिया है तो he should not give guarantee or security to company holding or promoters or directors of holding. इसमें directors of holding company ही है in current financial year or preceding 2 financial years exceeding 50 lakh rupees. फिर कुछ भी pecuniary relationship greater than 2% of gross turnover income नहीं होनी चाहिए. फिर आता है कि रूपाली को अपॉइंट करने के लिए both रूपाली and her relative must fulfill these following conditions. कलर कर दे 11.
should not be past or present KMP or employee, मतलब 3 साल में KMP एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए 3+1 और 3+1 4 ओके एंड should not be employed in current year. तो अगर एम्प्लॉय सर मुझे ये क्लॉज में डाउट अभी है देखो एम्प्लॉई जो है कि अगर अभिजीत जो है 4 साल एम्प्लॉई ऊपर की लाइन से बन रहा है कि 4 साल एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन दे दी कि वो 3 साल में हो सकता है लेकिन करंट ईयर में नहीं होना चाहिए, लेकिन ओके रूपाली 4 करंट सालों में नहीं होनी चाहिए। ईयर तो ये एक्सेप्शन करंट ईयर ठीक है 3 साल में रहा होगा पर करंट ईयर में नहीं नहीं होना होना चाहिए चाहिए, रिलेटिव को अगर करना रिलेटिव। एक्सेप्शन फॉर रिलेटिव ठीक है फिर आया एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, कोई भी ऑडिटर फर्म या पीसीएस की फर्म हो, कंपनी या होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट की, और कोई भी लॉ फर्म जिसकी इनकम 10% or more of 10% of gross turnover of company holding subsidiary or associate हो, तो you should not be a partner in that law firm. पार्टनर एम्प्लॉय प्रोवाइडर Employee or proprietor. फिर they should not hold 2% or more of the voting power of the company, both रूपाली and अभिजीत. फिर कोई भी एनजीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, so they should not be CEO or director, जहाँ पे 25% or more of the receipts come from company holding subsidiary associate and the promoter or director, or this NGO holds 2% or more voting power of the company. तो बेसिकली फिर क्या आई देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज जिससे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से दब जाए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। करेक्ट 12वां फिर क्वालिफिकेशंस एक पर्टिकुलर कलर कर फील्ड्स दे, दी है मस्ट होल्ड क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। ओके यस देन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कभी देना चाहिए कलर कर दे, कब देना चाहिए? फर्स्ट मीटिंग व्हेन शी अटेंड्स एज अ डायरेक्टर, फिर फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, और जब भी इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया में कुछ चेंज हुआ हो तब। रूपाली के ठीक है। अब ये यस ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, तो आपकी चॉइस नहीं है, यू हैव टू मैंडेटरी कंप्लाई विद दिस। मैंडेटरी तो आपके मिनट्स यस में ऐसी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यस चलो आगे फिर नॉमिनी डायरेक्टर, कलर कोई कर भी दो। नॉमिनी डायरेक्टर किस कहाँ पे कौन होता है वो। फिर तो शेड्यूल 4 के साथ कौन होता है नॉमिनी डायरेक्टर? हाँ सो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय लॉ और बाय अग्रीमेंट they with the company they have appointed him as nominee director, or any government has appointed him to represent their interests. चल आगे बढ़, 1 मिनट है, 1 मिनट में Independent 4 पड़ जा। हाँ हाँ फिर comply with schedule 4 and independent director not to receive stock option, only sitting fees as and profit related commission and reimbursement of expenses. अगर profits कम हुए तो schedule 5, 5 साल का टेन्योर है, अगर ज्यादा 2 रीअपॉइंटमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन है, ओनली 2 टर्म्स है, आफ्टर 2 टर्म्स आर ओवर 3 साल के बाद ही कैन बी अपॉइंटमेंट, देन he shall be liable only if act is done with his knowledge and not to retire by rotation. ठीक है, क्लियर है। अब एक कलर कर दे, 15, 16, 17, 18। अभी हम लोग करेंगे अगले सेशन में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, Schedule 4 शेड्यूल 4। yes ओके एंड कर रहा हूँ। yes